Hello everyone, welcome to Speakeasy. My name is Rudrani and I'll be chatting with two very talented and extremely honest people. I think they're honest in life, in their profession and in real lives, because whenever I've spoken to them, I never thought they are not being themselves even for a moment. And they have come up with something really exciting that I'm sure you already have watched. So Bombay mein Kaaba. बम्बई में काबा इट्स इफ यू दिस इज द दिस ये जो पोएम है ये इट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ माइग्रेंट लेबरर for whom there is nothing in Mumbai, there is no dignity for him, and he's remembering his village, the blue sky, the green field, his family, his kids, his old parents, you know. So he's actually analyzing what all he's sacrificed to come here, and even here he cannot get a life of a life of a dignity, you know. So that's the poem all about. For him, there is nothing in Mumbai, and that's why he wants to go back. So Mumbai You want to here add to that? Mumbai here is a metaphor for all the big cities. Even in the song, we improvised on the set, you know, before the mic. कि मुंबई हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बट हमारी जिंदगी जो है ऐसे ही प्रॉब्लम में फंसी हुई है. It is the collaboration of the two of you, which a lot of people still keep asking for. The last time in an interview, Manoj was asked, Manoj said, Anubhav to mere saath kaam nahi karta, stars ke saath kaam karta. But see, Anubhav, he's here. Yeah. क्या कहना है इसमें आपको? So finally Manoj has become a star. Manoj is always a star. तो फिर क्यों कर रहा था ये बकवास कि अनुभव सिर्फ स्टार्स के साथ काम करता है? इसको पूछो मैंने क्या क्या इसको ऑफर किया, इसने क्या क्या मुझे मना किया है. आज तो खो जाए मनोज, इतना टाइम क्यों लग गया, क्यों ना बोलते हो आप अनुभव को? He doesn't like me. क्योंकि गाने और नाचने वाला रोल नहीं देता है ये वही पीछे वाला रोल देता है. 10 साल वाले अनुभव की बात कर रहे हो ना, आजकल तो ज्यादा गाने बनाता नहीं है अनुभव. देखिए जब गाना दिया तो मैंने किया कि नहीं किया. ओ तो तू गाने का वेट कर रहा था, मैंने बोल देता. तो अभी मतलब लगा कि ये कोलैबोरेशन था, लाइक दिस इज द स्टार्ट. मतलब अगर शुरू करेंगे तो गाने से करते हैं, क्यों? एक्चुअली ऐसा कोलैबोरेशन ये था नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही मस्ती में खाली भी थे, एक अच्छा गाना था, everything felt right and we did it, but the amount of noise this song has ended up generating is mad. You know, Manoj, it's been a week today probably, and Manoj and I speak like at least twice a day, saying that it's gone through the roof. You know, the kind of people, imagine, you know, why should you be talking to us about a Bhojpuri song? Have you ever done that before? No. In fact, we haven't done a single interview with a Bhojpuri place. That is quite ironic, right? हमने तो सोचा था उससे ज्यादा, फिर ये कोलैबोरेशन अभी ऐसा हो गया जो हम दोनों को याद रखना पड़ेगा, याद रखेंगे, वरना ऐसे ये क्यों ही था, हम लोग खेल रहे थे कुछ. लेकिन you know, it's Rudani, it's you know, when we were doing it, मैं एक दिन रिहर्सल के लिए गया, फिर दूसरे दिन कितने देर, 1 घंटे रुके, चाय वगैरह पिया हमने, एक बार हमने पढ़ा, फिर उसके बाद अगले दिन गए, 1.5 घंटे में चाय वगैरह पिया, इसको रिकॉर्ड किया, उसमें इम्प्रोवाइज वगैरह किया, अब उसको 2-3 वर्जन मैंने करके दिया उनको, म्यूजिक डायरेक्टर हमारे अनुराग साइकिया हैं उनको, एंड after that we went our way, you know. So that's how it has happened. And then Anurag Saikia created some kind of, he created a package and a magic, and then Anubhav sent it to me, and I said, oh, it's sounding good. It's really sounding good. Then I made few of my friends hear this, and one of my friends who's quite you know, he's an actor, is still looking for an opportunity, and I really respect him. He said that, you know, I see a great possibility of it becoming quite popular. He was the only guy who said it. Okay, so हमने जाके के वीडियो शूट किया, वीडियो में बहुत मजा आया. That day I felt some magic. That day I started feeling that, you know, there is something that Anubhav and Anurag are going to create together.
which will be magical. That day, I think by the end of it, something was telling me that, this is not going to go just like that. But as honestly speaking, I've never imagined that this is going to, go through the roof. It has gone somewhere else now. We talk about putting a message across. When you do it in an entertaining manner, it obviously has more impact. Or that is why probably I feel like there is that touch to this as well, that viral factor, as they say nowadays, where everybody feels like, oh yeah. And beyond that, what is important for me is gaane ke shabd. You talk about this migrant worker when they come to a city where in their own house they can eat, they can eat pet bhar ke khana, but they come here, they survive on vada paos. And, this is I feel like that words also come from a very personal and, experiences that you all have observed. And both of you are very empathetic people. I think that also adds a lot to the narrative of a song like this. Mujhe lagta hai ki also, when you're writing a thing like this, do you feel, you remember, you recollect things that you see, that you feel, that you connect to, and that pours in as well? Yeah, actually, you don't mean I wrote it. It was written by Dr. Sagar. It was written by Dr. Sagar. But yeah, when it was being ideated, when you have to give a lyricist a brief, it's a lot of anger. It's a lot of anger against our indifference towards something that supports our lives on a day-to-day basis, on a moment-to-moment basis, starting with the watchmen to our drivers to our, the works. But a lot of times these things, there's a serious danger of it becoming, like you were saying in the beginning, becoming an essay or becoming preachy. The trick is and that doesn't happen very often. The trick is that it becomes entertaining, and that becomes your gateway into something that is being said. ऐसी वो कौन सी पंक्तियां है जो आपके साथ बहुत रेजोनेट करती है? मेरे साथ में तो सारी की सारी पंक्तियां जो हैं बहुत ज्यादा रेजोनेट करती रही, और खास करके मैं करते हुए, जब मैं माइक के सामने कर रहा था या मैं जब परफॉर्म भी कर रहा था, तो वो सारे जो भाव थे वो मुझे बहुत ही पर्सनली आ रहे थे, और वो इम्प्रोवाइज तभी हो पाया कि जैसे वो अपने बेटी से बात कर रहा है फोन कि तू इधर आ जा और मेरी गोदी में सो जा, है ना। एंड चाहे वो अपनी वाइफ से बात कर रहा है फोन पे। सो मैंने वो देखा है लोगों को बात करते हुए, पीसीओ से लोगों को बात करते हुए मैंने देखा है, मजदूरों को अपने घर की तरफ। अभी हम लोग भी बात करते थे, जोर से बात करते थे, अनुभव जोर से बात करते थे कि उधर पीसीओ पे लाइन लगा के खड़े होते थे, कान पे हाथ रख करके। सो ये सारी चीजें जो थी, ये कुछ पर्सनल जो एक्सपीरियंस से उससे आए थे, और सारे गाने को मैंने फील इसलिए किया बिकॉज हम लोग बाय चॉइस माइग्रेंट हैं, वो लोग बाय चॉइस माइग्रेंट नहीं है। जो मजदूर है वो सच में वो 2 जून का रोटी या सच में वो अपनी ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए वो आया है, क्योंकि वहां पे उसको वो मिल नहीं रही अपॉर्चुनिटी, इसलिए आया हुआ है। हम लोग आए थे एक सपने का पीछा करते हुए आए थे। वी थॉट ऑफ बिकमिंग समथिंग, यू नो। सो आवर गोल्स वर डिफरेंट। उन एरिया के हम लोग जिस सामाजिक वर्ग से आते हैं ना, जिस सोशल स्ट्रेटा से आते हैं, मैं और मनोज, हमने ये सब कुछ पर्सनली देखा है, अनुभव किया है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मनोज, एक थोड़ा सा हमारा एक क्रिटिसिज्म चल रहा है जो कि बहुत सच है, कि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को ये बात जाननी चाहिए कि ये गाना मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय लोगों की बात करता है, यूपी बिहार में, भोजपुर में, जो यहाँ आते हैं, जिनके पास 2 बीघे की जमीन है। जो एक्चुअल सच है ना, वो इससे भी बहुत बदतर है, बहुत ज्यादा बदतर है। ये तो मतलब दूध माखन मिलेला हमारे गाँव में, ये तो कुछ लोगों को मिलता है, ज्यादातर लोगों को तो दूध तो मतलब बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। तो ये गाना शायद आपको थोड़ी दूर तक ले गया है, सत्य इससे बहुत आगे है और बहुत दर्दनाक है। बट अनफॉर्चुनेटली इस क्राइसिस के दौरान हमने देखा कितने सारे ऐसे तस्वीर थे, विजुअल्स थे, जो कि बहुत ही सैड था। लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट लाइव्स बिकॉज ऑफ द वे दे हैड टू गो इन द लॉकडाउन।
तो बहुत ही एक जो स्थिति बनी हुई थी वो काफी आई थिंक सैड थी, बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग थी। हम उनका डेटा नहीं रख पाए जो लोग मारे गए, तो हम उनके बारे में करेंगे क्या? हमको तो पता ही नहीं कितने लोग मारे गए, हमको तो पता ही नहीं कितने लोग गए वापस, हमको तो पता ही नहीं कितने लोग वापस आए। तो उनके लिए मैं और आप तो बाद में करेंगे, उनके लिए जिनको करना चाहिए उनके पास तो गिनती ही नहीं है। देखिए, जो विजुअल सामने आए उससे मुझे लगा कि सारे राज्य सरकारों को कम से कम उनके गुजरते हुए समय पे उनका बहुत सारा ध्यान रखना, और उनको उनकी ट्रांसपोर्टेशन और उनके खाने पीने की, उनके बीच में सोने की, कम से कम इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। कितनी हो पाई मुझे नहीं पता, मेरे पास भी इसकी कोई डेटा नहीं है, ना इसकी कोई जानकारी है, लेकिन विजुअल्स इतने दर्दनाक थे कि मैं तो कुमाऊं में था और मेरा मन कर रहा था जैसे कि मैं चला जाऊं, मैं कुछ तो करूं, मैं इसी समाज का हूं। और ये एक सूटकेस पे एक बच्चा लेटा हुआ, उसकी माँ उसको खींच के लेके जा रही है। आई मीन, फॉर मी इट वाज वेरी इमोशनली हार्ट रेंचिंग फॉर मी मोर देन एनी क्रिटिसिज्म कि ये क्या रोका जा सकता था कि नहीं रोका जा सकता था, हुआ कैसे हुआ, क्यों हुआ, मेरा दिमाग ही नहीं जा रहा था। मेरा सिर्फ ये दिमाग जा रहा था कि अगर ये हो गया है तो क्या हम इस पूरे रास्ते में हम उनकी देखभाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या हम उनको बचा सकते हैं? क्या हम उनकी रक्षा कर सकते हैं? क्या हम उनको आसानी से वहां तक लेके जा सकते हैं जहां वो जाना चाहते हैं? मेरा दिमाग हमेशा उसी पे रहा। हमने कुछ किया नहीं, एक्चुअली कुछ भी नहीं किया उन लोगों के लिए। वो बेचारे पैदल ही घर गए और कितना भी गुस्सा रहे होंगे, कितना भी रोए होंगे, वापस भी आना शुरू हो गए, क्योंकि आज भी उनको वहां पे रोटी नहीं है। तो हमने उनके लिए कुछ किया नहीं। हम, मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत ये होगी, आज मैं ऑफिस गया था किसी काम से, तो लिफ्ट की वेट कर रहा था और एक महिला थी, वो सीढ़ी पे झाड़ू लगा रही थी। एक अच्छी शुरुआत ये होगी कि उस वर्ग के हर इंसान को जैसे ही हम देखें, उससे कम से कम पूछें कि कैसे हो। हाँ, वहां से अच्छी शुरुआत होगी। हम तो उनको देखते ही नहीं, वो हमको नजर ही नहीं आते। हमको नहीं, नजरअंदाज नहीं करते। नजरअंदाज तो तब करें जब नजर आए और हम नजरअंदाज करें। हमको नजर ही नहीं आते वो लोग। जब हम गाड़ी में बैठ के सड़क पे जा रहे होते हैं, फुटपाथ पे सोया हुआ बच्चा स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा अपने जीवन में, हम सोचते नहीं इस बारे में। लेकिन नेशनल लेवल पे हम कभी भी हमारे रीजनल लैंग्वेज को उस तरह का इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मुझे लगा ये एक बहुत अच्छा तरीका भी था, पीपल एक्चुअली ट्राइंग टू इमुलेट। आप लोगों ने कंपटीशन भी रखी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे उसके बारे में जानना है। और किस तरह से, क्या आप सहमत है कि ये it feels like Bhojpuri is being considered like one of our own, which I don't think always happens with regional language. I was doing an interview today in the morning, and the lady, said that I never thought that Bhojpuri will sound so cool. And I said, this is the problem. Bhojpuri has all the expression. Ka, So all the rap and hip hop expression Bhojpuri has, and it always had. I always felt that it's a very, very, very cool language. It's a very cool language, and I don't have to, imitate, or anybody else who is rapping in Bhojpuri doesn't have to imitate Snoop Dogg or Eminem. No, but you don't need to. You just have to, imitate the expression which is there. Na to Bombay mein kawa, बोला, तो वो सारी चीजें हैं वहां पे आपको। और मुझे सबसे खुशी की बात यह है कि अनुभव और उनकी टीम में एक कॉन्टेस्ट भी रखा है। आप अब देखेंगे कि इस कॉन्टेस्ट में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो किस तरह का वर्जन जो है भोजपुरी में लेके आएंगे। जो वहाँ के जो नेटिव हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, वो बहुत सरप्राइज करने वाले हैं। और उनसे मैं एक आध जो मैंने देखा, उनसे मैंने सीखा, और मैं जानता हूँ कि आगे जो और भी आएगा उससे मुझे और भी आइडियाज आएंगे, कभी आगे कभी मौका लगेगा उस पे करने के लिए। वैसे भी आप सिर्फ गाने ही करते हो आजकल अनुभव के, तो अनुभव यही तो हो पाएगा। अब फिल्म तो पता नहीं कब करने वाले दोनों। फिल्म करता नहीं हूँ मेरे साथ, फिल्म फिल्म नहीं करता। अच्छा हुआ रुद्रानी, थैंक यू वेरी मच। आस्क हिम। अनुभव, अब अनुभव का एनीवेज लिस्ट है, तो अनुभव यहाँ पे ये बात कह दी है कि मनोज बहुत ही इंटरेस्टेड है। अब बॉल इज इन योर कोर्ट, बट बिफोर आई मूव ऑन, I always said that, he knows it.
It's just that, he has to first finish all his what do you call, commitment with all the big stars, then he will come to me. Anubhav, is there a dialogue that you want to hear in Bhojpuri version of Manoj's? I have designed some posters for my office. I'm renovating my office. I'm going to put up some posters. So what I've done, Manoj, मैं तुम्हें बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग पोस्टर्स बना रहा हूँ. So उसमें क्या है कि बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों के बड़े आइकॉनिक वन लाइन डायलॉग्स हैं, which are called money lines. So I'm putting up those posters. So suppose it's the Godfather poster, and you see Marlon Brando, and everything else is Hollywood, but the money line, it says, okay, ऐसा ना आप पर देव के रिफ्यूज न कर पाई. Then there's another one which says हम return आए. हम फिर आए. हम फिर आए. नहीं, उसमें थोड़ा कूलनेस डाला है. हम return आए. I love the Godfather dialogue. तो मनोज उसका डायलॉग बताओ कैसाब्लांका का. Of all the gin joints. Of all the gin joints, क्या है वो? रुद्रानी पूरा याद है? Of all the gin joints, you walk into mine. Of all the gin joints in town, in all the towns in the whole world, you walk into mine. You, अच्छा, in all the gin joints, you walk in mine. पूरा दुनिया के तमाशा छोड़ के तू हमरे लगे है नू. So that's Casablanca for you. And we have our own Bhojpuri Casablanca right here. बहुत कुछ बोला जा रहा है. There's an entire conversation where they're talking about, this city is, the industry is this, the industry, there's a drug mafia here, there's this, there's that. And you all have spoken about it. Jaya Bachchan, now Jaya ji has gone and spoken for the industry, saying the government needs to do protection, stand up for an industry where it's not only just bad people out here, and we've also done good things, and why is there no protection for it? So I'll start with Manoj, because I know Manoj loves answering questions like this, and then I will come to Anubhav. जया जी ने एक बात सही कही कि उन्होंने कि जो जनरलाइजेशन है वो नहीं होना चाहिए, और ये जो इंडस्ट्री है, मैं ये नहीं कहता कि इंडस्ट्री किसको खाना देती है नहीं देती है, इस पे बात इसकी नहीं है. बात इसकी है कि एनसीबी और सीबीआई ये सब इतनी बड़ी एजेंसीज हैं जिनकी हम बड़ी कदर करते हैं, जिन पे हमारा पूर्ण विश्वास है, स्वतंत्र एजेंसीज हैं. वो अंत में अपना काम करेंगी. इसको लेकर के बिना मतलब सोशल मीडिया पे और इधर उधर बातचीत करने का कोई फायदा है नहीं. उनको मुझे लगता है कि वो ज्यादा जानते हैं और अपना काम कैसे करना है, और वो अंततः जो है अपने सच्चाई के साथ, अपने तथ्यों के साथ और अपने फैक्ट्स के साथ लोगों के सामने आ जाएंगे. लेकिन इस बीच में हमने एक तमाशा क्रिएट किया हुआ है, और उस तमाशे में हमने सबको कटघरे में खड़ा किया हुआ है. हमें नहीं पता कौन दोषी है, लेकिन आज के तारीख में जब आप सिर्फ इंडस्ट्री कहते हो तो ऐसा लगता है कि अनुभव भी उसी कटघरे में है, मैं भी उसी कटघरे में हूँ, और भी बहुत सारे लोग जो बहुत ही सिंसियरली, बहुत ऑनेस्टली, ईमानदारी से अपना काम इतने सालों से कर रहे हैं. कितने सारे पापड़ बेले, कितने सारे संघर्ष किए, और एक फोकस पे हम लोग काम करते रहे, और यहाँ तक हम पहुंचे हैं ईमानदारी से. कल को जो कोई दर्शक ये बात जो देख रहा है, वो समाचार देख रहा है, इस तरह की बातें सुन रहा है, तो वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा, जब वो कभी एयरपोर्ट पे, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी किसी होटल में या शूटिंग करते वक्त वो मनोज बाजपेयी को, अनुभव को, या हमारे तरीके जितने सारे ईमानदार लोग इस इंडस्ट्री में हैं, और काफी है, ज्यादातर वही लोग हैं, वो ऐसा सोचेगा कि ये सब चरसी गंजेड़ी हैं, ये सब लोग जो है ना नशा करके सब पड़े रहते हैं. सब ये शूटिंग भी जो कर रहे हैं या जो फ्लाइट में जा रहा है, ये नशा करके बैठा होगा. भाई साहब, आप एनसीबी लगाए हो, आप सीबीआई लगाए हो, उनको अपने तथ्यों के साथ आने तो दो. इतनी क्या छटपटाहट हो गई है कि सोशल मीडिया पे हंगामा मचाया हुआ आपने. मैंने सही कहा, ऐसा लगेगा लोगों को हमारी तरफ देख करके कि मैं नहीं जा रहा हूं. उनको देख करके ऐसा लगेगा कि मैं मनोज बाजपेयी नहीं, कोई कोकेन जा रहा है.
So you are painting everyone with the same brush. So my problem is that कि और मुझे ये लग रहा है कि अब अभी तक ड्रग चल रहा था और अब फिल्म इंडस्ट्री पे बात आ गई है, अब जया जी हो गई हैं, अब फिल्म इंडस्ट्री हो गया, अब कल को क्या मुद्दा होगा पता नहीं, है कि नहीं अनुभव? पता नहीं क्या मुद्दा होगा। मुझे अब जैसे मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, कल इसी बात को जो है लपेट उपेट के मुझे गालियां भी देनी शुरू कर देंगे। तो मैं आपकी इंटरव्यू देने से पहले मैं पिछली इंटरव्यू में भी बोल रहा था, और मैं सच में करता हूँ कि हे प्रभु, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ कि हे प्रभु मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए और मेरी बात का बतंगड़ ना बनाया जाए। हे प्रभु, मेरे कल सोशल मीडिया पे कोई ऐसी हेडलाइन ना है मेरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जिससे कि लोग मुझे गालियां दे। हे प्रभु, सब कुछ अच्छा जाए। हे प्रभु, सब अच्छे से निपटा देना है प्रभु। पहले इंटरव्यू देते हुए बड़ा मजा आता था, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते। आज इंटरव्यू देते हुए हमारी हालत खराब रहती है। तो कहां से कहां तक आए? और ये कोई अच्छा ग्राफ नहीं है, नहीं, और ये कोई अच्छा बदलाव नहीं है। आज हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। हम क्यों डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को? मनोज बाजपेयी क्यों डिफेंड कर रहा है अपने आप को? अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो उसका नाम लीजिए, जो दोषी है उसको अब साफ कीजिए भाई, जो गलत किया है उसको अंदर डालिए। अगर आप जनरलाइज करके सारी बातें करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे ऊपर भी जो है उंगली दिखा रहे हैं लोग। मुझे उससे दिक्कत है। मुझे बाकी किसी को बोलने की अगर आजादी है तो जरूर आजादी है, लेकिन थोड़ी शालीनता से, थोड़े तहजीब के साथ आप बातें कीजिए। आप देखिए, बहस बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन बहस होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आज इस मुद्दे पे बहस होगी, कल उस मुद्दे पे होगी। आज अनुभव ने कुछ बोला तो उसका एक बात निकाल करके कल उस पे जो है 5 दिन उस पे लगा दिया, फिर उसमें किसी ने बोला, फिर 10 दिन उस पे। अरे शुभ बोलो यार, शुभ बोलो। Maybe some people are consuming drugs in our business. Maybe some people are peddling drugs in our business. Maybe this is the largest democracy in the world. We've got systems in place. We've got agencies in place. They're all investigating all of whatever is being talked about. They will punish those people, no? So what is the discussion? It is. So I think the biggest service that you and I can do to this discussion is that we don't discuss it, because this is a discussion to deflect the real discussions. Sure. The more, so people like you and I don't talk about it. I don't like to go to those. I receive every morning, I receive messages from all the news channels. Come and discuss this, come and discuss. I don't even respond to them. These, all this drug and all, they're big agencies. There's NCP, there's DRI, there is CBI, there is CID. They will look after it. And we've become so vicious, I must say. One day I wrote on my Twitter handle, and I must tell you that I'm followed by hundreds of serious journalists. Yeah. As I said, do you think drugs are being used in the business of journalism? You know what? Not a single one spoke. So 3-4 of them spoke, and in very non-committal. I have never seen anybody. And every single day, I hear of a new friend of Sushant. वो नीचे लिख के आता है, कोई कहता है मेरा भाई था सुशांत, कोई कहता है मेरा दोस्त था सुशांत। एक ऐसा आदमी जिसके इतने सारे दोस्त थे, वो इतना अकेला था अपने आखिरी दिन, इतना अकेला था वो आदमी। कहां थे ये दोस्त लोग? क्यों इनको नहीं पता था कि वो तकलीफ में है? या मतलब अगर वो उसकी हत्या हुई है तो क्यों नहीं पता था आपको कि उसकी हत्या हो सकती है? या उसने आत्महत्या की है तो क्यों नहीं पता था आपको कि ये आदमी आत्महत्या कर सकता है? आप दोस्त थे और आप भाई थे उसके, तो हर आदमी को टेलीविजन पे जाके बकवास करनी है। बिल्कुल सही कह रहा है। कहाँ हम लोग सुशांत के बारे में हमने श्रद्धांजलि दी, हम उसकी बारे में बात कहाँ कर रहे हैं? हम उसको सेलिब्रेट कहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बड़ा यूनिक लड़का था, मुझे पता ही नहीं था ये सब उसके बारे में। बहुत ही यूनिक लड़का था, बहुत ही यूनिक लड़का था। मैं जानता नहीं था उसको। मैं तो आपको सच में कहूँ कि मैं तो उसकी किताबें देख के सोचता है कि मैं सोचता था कि मैं कितना अनपढ़ आदमी हूँ, कितना अज्ञानी हूँ, मुझे पता ही नहीं है।
वो और रणबीर शोरी आपस में डिस्कशन करते थे वो स्पेस को खगोल लेकर शास्त्र के, के और बारे में। नो स्पेस को लेकर के, हाँ, और उसको पता नहीं खगोल क्या, शास्त्र बोलते हैं भाई। हाँ, और पता नहीं क्या क्या चीजों के लेकर के वो लोग डिस्कशन करते थे, आर्गुमेंट करते थे, और मुझे समझ नहीं आता था यार ये है क्या. सो आई यूज्ड टू फील दैट आई डोंट नो मेनी ऑफ द थिंग्स दैट सुशांत नहीं. कोडिंग के बारे में मेरी बेटी को के क्लास में कोडिंग अब शुरू करेंगे, तो मुझे लग रहा है कोडिंग क्या होती है, क्योंकि वो उस समय मैंने सुना था कि वो कोडिंग को लेकर के एक ऐप तैयार कर रहा था. वो रोज नए नए तो जोकर आते, बोलते मेरा भाई था, मेरा दोस्त था. अरे तो आपके मैं दोस्त की मृत्यु हुई, आप अंत्येष्टि पे तो नजर नहीं आए मुझे. This is just the context of how mental health should be more in focus, because people in this lockdown we have seen, in fact I saw the students have committed suicide, because of the pressure Right. of the exams. So there is genuinely that issue, that as well. So while I would like to end on that note as well, so if if you can tell me about, because both of you have advocated the importance of mental health, and you yourself, like I said in an interview, had mentioned that. The importance of Anwar was talking about it. Importance of friends and family is that, okay, of understanding each other. Somewhere with the what do you call, with the emergence of, say, liberalization and globalization on the market culture coming in, we somehow started, going away from each other. Started, our care is more into words, that I care for you, I feel for you. We are more into words than actually caring or feeling for each other. The friends that I know, we always random call we do to each other. How are you? Kya chal raha hai? So if I see someone's Facebook message, suddenly it reminds me that I need to call him, because since a long time I haven't called him. So I call him. I try to find out as to how he's doing. So so the importance of the family, the family as a fabric, somewhere it lost its knitting. We don't care. We don't care about each other. We are friends, but we say that we are friends, but we really don't. We are not connected to each other's what do you call, inner side. We are neighbors, but we don't know who is next to my flat. It's on school level that the teacher should really teach students how to cope up with the pressure. The pressure of modern time is too much. I look at my daughter and I see that. So it is school's responsibility, it is parents' responsibility to tell your child how to cope up with it, and make them realize that nothing is everything. To be nothing is also great. To do nothing is also great. We are unique. All of us are very unique. The relationships are losing meanings, and it's a very we are at the on the verge of serious breakdown of human relationships, and this is the time we need to just need to wake up, and we need to go back. See what I've done. Can you see this? I'm going back to this. I'm very soon going back to it, because I'm practicing this. It's taking a lot of effort. It's like quitting smoking. Yeah. I don't know how I'll be able to do it. Somebody else, I should try doing this. No, I'm doing it. I'm going back to this. We don't, the experience of life hasn't become richer or fuller with disconnecting with people. So we need to, step back. It's time to step back. Absolutely. Well, on that note, thank you so much. Thank you. It was a long one, but I always, I always enjoy talking to the two of you. You all are very, very honest, and thank you. I think the song's doing really well. And yeah, Anu, you were saying something?
I'm sorry, I I want you can't. to say a sentence in Bhojpuri before you sign off. Yeah. Let's So see. can you tell me? Let's see you try. हाँ, tell me. I want to say it. Come. कुछ भी आसान से देना मनोज. You can't give me like एकदम A level वाला मत. सिखाओ मनोज. क्या बताओ? A level. मुझे बोलो सेंटेंस को सिखाओ ना. सिखाऊं मैं तुमको. अच्छा. सटकी से सूत सूत. सटकी से सूत सूत. सटकी से सूत सूत खींच खींच मार दे. ये जान पूछ के you're giving me this, yeah. This is सटकी से सूत सूत खींच खींच मार दे. भगबू की ना बबी भगबू की ना. चला फिर बाद में बतियाए. एक मिनट. I don't give up on things, okay? Okay. I'm going to attempt this. ठीक है, मतलब मुझे याद रहेगा कि आपने जानबूझ के मुझे ऐसी बहुत कठिन सी लाइन दी है, बट अच्छा चलिए आपको मैं अच्छी से अच्छे से सिखाता हूँ मैं आपको. जब आपके दिलीप दादा बोलेंगे कि बबी खैलू की ना, तो आप कहेंगी दादा खा लेहनी. दादा खा लेहनी. हाँ. दादा खा लेहनी. अब कितना खाएंगी? चलो बाय. Enough. Thank you so much, guys. Manoj, you can go and sleep. So can you, Anubhav. But thank you. Always respect for the two of you, and we shall talk again soon. Thank you so much. Lots of love. Thank you, Rudani. Pleasure. Bye.